welcome you all to the opening ceremony for the commencement of second professional BMS batch 2023-24, batch Vagpita, followed by parents teacher meeting. May I request Dr. Raghuram Achar sir, Dean Students Welfare, MGUG, Dr. Giridhar Vedantam sir, Principal, GGIMS, Dr. Naveen Kodladi sir, Class Coordinator, 2023-24 batch, GGIMS, to join us onto the stage. May I request our esteemed guests to perform the Deep Prajalan ceremony, marking the beginning of this auspicious event. Let us now join together in paying our respect to Lord Dhanvantri, the father of Ayurveda, by chanting the Dhanvantri Vandana. नमामि धन्वन्तरिद्यादिदेवं सुरासुरवन्दितपादपद्मं लोके जरारुग्भयमृत्युनाशं धातारमीशं विविधौषधीनां चं व्योमवातावरिवारिवर्णिं पंच प्रपंचात्मक देह भाजम
संताप संपात जरा जरांतम नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् नवीन नील मुदिकान्तिकान्तं शान्तं हरेर्वादशमाख्यमूर्तिं मूर्तिं शतानां सुमिरो यथा नाम नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् Please welcome Dr. Naveen sir, class coordinator, who will address us and set the tone for this academic session. Respected. Hello. Respected Raghuram Acharya sir, Dean Student Welfare, Mahayogi Gorakhnath University, Gorakhpur, and respected Dr. Giridhar Vedantam sir, Principal, Guru Gorakhnath Institute of Medical Sciences, Faculty of Ayurveda, and all the faculty members and dear students of Vagbhata batch. Today we have gathered here to mark the opening ceremony of second professional BAMS of Vagbhata batch 2023 to 24. As well as we have a plan of parent teaching meeting followed by that. So second professional BAMS is a middle phase of your BAMS curriculum. If you take 1.5 years of each profession, you are in the middle phase, and in which you will be studying the Tridandas, Hetu, Linga, Aushadha, Jnanam, Tremeta Tridandavat. So all the Tridandas will be, so you will be studying etiology, pathogenesis, as well as medicine, manufacturing. Along with that, medicine and toxin, Agata, there are 6 subjects, Dravya Guna, Rasashastra, Roga Vijnana, Swastha, Agada, and Samhita Adhyayana. 6 subjects will be there. So Samhita will be the base of all the Ayurvedic knowledge, and this is divided in different subjects, and so the important information regarding the medicine as well as the disease symptomatology you will be studying in detail. And at this time, we want to start a good beginning. We have wanted to become a beginning as a celebration. That is why we wanted to make it as an opening ceremony, because any good beginning will be a good ending. So the progress will be good. So, and I'm happy that in spite of some of the difficulties, you managed to attend. So those who attended this program, I'm really happy for you, because there can be n number of reasons for not attending, but out of all the adversities, you made it a point to attend your opening ceremony and participating in this. And it is said, Acharyat Padamadatte Pade Shishyam Swamedhaya Sah Brahmacharibhyo Pade Padam Pada Kalakramenacha. So 1/4 is from Acharyas, 1/4 of the knowledge is from the one's own intellect, and 1/4 is from the classmates or the schoolmates, and 1/4 will be from the time itself. Time teaches you a lot. So it's very heartening to see that because of your teachers' efforts, of course, more than that, your own efforts. Swamedha and Acharya, we have seen your results, wonderful results. More than 30 students have secured distinction in first professional BAMS. Congratulations to each and everyone. And so many first classes, those who have, almost everybody has passed in the first professional BAMS. So it is because of your sheer hard work and supported by the teachers' efforts. So congratulations. This learning has, you have proved that you have done a good learning in this first professional BAMS. And Sabrahmacharibhyo, along with classmates. I remember when I was talking in your Shishyopanayana program in that multipurpose hall, I was telling that you are the cream of the students which have entered the college, because
the students were very much intelligent students who have scored very good marks in the second BMS, second PUC or 12th standard, who have joined in this. So because the intelligent students, that the other students also learn from that. So even in many institutes, big institutes, it is not only the individual efforts or the teachers' efforts, the environment that is created by the our classmates, the entire ecosystem, that makes you learn better. So sub brahmacharya, that also proved. So you have done a good group study as a class and given a good results. And you have already, of course, khala kramena cha, in the sense by the time we will learn many things. Of course, for that there should be some conducive atmospheres. So if you are, until you are stayed in this institute, there are many infrastructural facilities which facilitates you, including the library, digital library facilities, and all the guidance by the teachers, or all the infrastructure you have. So the classrooms and audiovisual facilities which you have for the teachings, all these, everything counts. So by which also you'll be learning many things gradually. And of course, Acharya, one more point I would like to add. So it's very heartening to see that 5 of the Sparks research projects sanctioned out of 10 submitted from our institute, and our student has secured 5 research projects, and our teachers have guided him. It's one of the top most number in the UP itself, and around the second or third place in the entire nation. So 5 out of 10 projects, 5 projects, because it is not an easy thing, because guiding and of course your commitment to go ahead with that. And also I also appreciate the students who have already also participated in hackathon. So one of the students from this class itself, Pragati Yadav, she has made it a good effort in and securing a project from in the hackathon, which is organized by All India Institute of Ayurveda, New Delhi, which is the premier institute, the topmost autonomous institute under the Ministry of Ministry of Ayush. So all these are possible because of such environments. And also we have started, I think you are also already participating. Our intention is to improve our clinical knowledge, the medical knowledge. That is why, other than the regular teaching method, this one, we have the clinical presentations around every Wednesday. So by which you will be studying little by little every week. And the mentor-mentee system has been introduced, in which any student, if you have some grievances or any discomforts or anything to share with some teacher, which sometimes may be forwarded to the higher authorities also, you have that system. So we have introduced that. So it is, you have to utilize that facility also. If there is any issues which hinders your studies, mainly anything which hinders your studies, that is to be brought to notice of your mentors, and it will be discussed and it will be taken care. So such aspects also be ecosystem is also created in our college. And as a class coordinator, of course, primarily I'm happy to be class coordinator of your batch, because one of the good batch I have seen. But I would like to remind you some of the things, because it is not always praising works out. One thing is, first thing is, you have to be sincere and honest. So, including the members who have filled the Google form that my parent is coming. If they are not able to come, you have to inform such things, because there is some event is being organized. Such at that time, if there is, it's your duty. If your parent is not able to inform, we don't comment on that. But as a student, you have informed that my parent is attending, but it is, if he or she is not attending, of course there can be many reasons for that. We are not disagreeing with that, but it is your duty to inform. The second thing is regarding your attendance. You know, the attendance is 75% of attendance, including all reasons, medical reasons, anything that should compulsory. You have to maintain the attendance and performance. All the PAs and
terminal examinations you have to participate, and if you miss that, that cannot be compensated with another exam. So such things are not there. So you have to attend the examination when it is announced and participate with full spirit. Then the important thing is discipline. So I had, though I had not taught you to this class, I had an opportunity to involve you some of the activities like in Maharana, the processions and all. So in all the conditions, the most stressed was discipline. So if the internal conflicts may be there, some things, whatever it may be, it should not be harming your studies, or it should not be affecting the atmosphere of the college or the university. So you have to see that it should not affect that. So discipline is an important integral part. So for that, sometimes we may have to take the tough decisions, though it may be harsh, but unless you follow that, that may be the result. Then the last point I want to remind is that manage your distractions. Of course, every adult or a student should have to think about what are your, calculate your distractions. There can be mobile, or there can be some friendships. So anything which you distracts, or access your addiction to the social media, WhatsApp or Facebook. So whatever is the medium level, so moderate level, everything is good. Otherwise, it can be dangerous also. So manage your distractions. Focus on your study, because I always say, as a student, your main business and one and only business is study. So focus on that, and all the best for the second BAMS, for the new beginning in of the second BAMS. Thank you. Thank you so much, sir, for sharing insights. Please welcome Dr. Gopi Krishna sir, our HOD, who will share his insights and expertise on Rog Nidan. अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. Honorable Principal, Dr. Giridhar Vedantam sir, Chief Guest of today's function, Dr. Raghuram Acharya sir, Coordinator of Vagbhata batch, Dr. Naveen ji, dear faculty members, parents, my dear students who are entering into the next phase of their learning. Whenever if you think about this particular learning, so you have studied the 6 subjects almost in your first year. All those 6 subjects you are going to learn in the second year, applying that all those 6 subjects in each of these particular subject itself. Whatever you are going to learn in your second year, each of these informations you are going to learn in your third year. So that means this is becoming a bridge between your first year and third year. So I am Dr. Gopi Krishna, Professor and heading the Department of Roganidhan and Vikriti Vigyana. I am supported by two best team members, Dr. Sandhya Pathak, who is an Associate Professor in the department, and Dr. Sarvabhauma, Assistant Professor in the Department of Roganidhan. So who actually give you the insights, हमें रोग निदान पढ़ना क्यों है, अगर हमको ये कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना क्यों आ गया, कैसे और कैसे पढ़ना है, ये सभी आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा. द थिंग इज, आपको अब कहाँ हो, आप कहाँ जाना है, इसको आप तय कर लो. सो इट इज बीन मेंशन दैट द knowledge is power, but right knowledge at the right time
इज मोस्ट पावरफुल। कहाँ पर क्या देना है, कहाँ पर क्या नहीं देना है, ये सभी हमें इससे पता चल जाएगा। एंड टू हैव दिस पर्टिकुलर राइट नॉलेज एज सच, एक प्रिंसिपल बोला गया है 10,000 आवर्स प्रिंसिपल। ये 10,000 आवर्स क्या होता है? कोई भी सब्जेक्ट आप उस सब्जेक्ट को 10,000 आवर्स आप सोली देते हो, सो दैट मीन्स यू आर बिकमिंग ए मास्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। इसका मतलब है कि आप रोज 7 आवर्स पढ़ोगे तो आपको पूरा सेकेंड ईयर सीखने में 2 साल 7 महीने लग सकते हैं। देखो, अगर हमें 1.5 साल में खत्म करना है तो व्हाट शुड बी आवर स्पीड ऑफ लर्निंग। इसीलिए think of that particular part. Now coming to the Rogagnana subject and Vikriti Vijnana. So this is actually the bridging subject between the classroom teaching and bedside teaching. So classroom teaching में हम पढ़ते हैं what are the different principles etc. Bedside teaching में हम पढ़ते हैं पेशेंट से बात कैसे की जाती है, पेशेंट से बात कैसे की जाती है और पेशेंट से बात करते वक्त अपनों से कैसे बात की जाती है और अपने बड़ों से कैसे बात की जाती है, पेशेंट के रिलेटिव से कैसे बात की जाती है, ये सभी हमें सीखना पड़ेगा। और कहाँ पर हमें कम बोलना है, कहाँ पर हमें विथ इमोशन हमें बोलना है, ये सभी हमें सीखना पड़ेगा। और ये सीखने के लिए बोलना तो सभी सीख सकता है, लेकिन कैसे बोलना है, कब बोलना है, कब नहीं बोलना है, ये सभी सीखने के लिए हमें पूरा लाइफ टाइम लग जाता है। इसीलिए whenever if you are going to learn about this, you have to learn it with deep understanding। मतलब हमें ये सभी स्किल्स जो हैं हमें एक दिन में नहीं आने वाले, हमें बार बार उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, तभी आप उसको सीख सकते हो। एंड एक छोटा सा लाइन बोल के मैं आपको ये खत्म करता हूँ। शायद आपने संस्कृत में सुना होगा, अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत विश्वतोमुखम अस्तोभम अनवद्यम च सूत्रम सूत्रविदो विदु। कोई भी लर्निंग हो आप 1 मिनट में बोल सकते हो, कोई भी लर्निंग हो आप 1 घंटे में बोल सकते हो, कोई भी लर्निंग हो आप 1 महीने भी बोल सकते हो, कोई भी लर्निंग हो आप 1 साल बोल सकते हो, लेकिन किस तरह से बोलना है ये सभी आपको सीखने के लिए अपने आप को तपाना पड़ेगा। यू हैव टू उसमें इस न्यास सागर में आपको डुबकी लगाना ही पड़ेगा। यू हैव टू डू दैट so that you can become one of the best learners, best clinicians. With this, I thank the organizers who have given me the opportunity to introduce the subject on this particular aspect. Thank you. Thank you so much, sir, for your words. It is our pleasure to welcome our esteemed HOD, Dr. Reshmi Pushpan ma'am, who will provide us with a comprehensive overview of Agada Tantra. Good morning, one and all. Respected Principal Dr. Giridhar Vedantam sir. Respected Dr. Raghuram sir. Dean Students Welfare MGUG. Your second prof coordinators Naveen Kodladi sir. Respected parents, my faculty friends and dear students. I'm here representing the Agada Tantra department. We have 2 faculties, myself, Reshmi Pushpan, and your assistant professor, Dr. Arpit Walia. So, ये अगत तंत्र जो सब्जेक्ट है वो एक क्लिनिकल सब्जेक्ट है। ओके, तो सेकेंड ईयर में जो आप पढ़ने वाले हैं उसमें अगत तंत्र और स्वस्थ वृत्ति, ये 2 सब्जेक्ट्स आपको क्लिनिकल सब्जेक्ट्स रहेंगे। और आप ऑलरेडी अष्टांग आयुर्वेद से यू नो अबाउट अष्टांग आयुर्वेद, तो
उसमें आप देखेंगे तो अगत तंत्र इज कंसिडर्ड एज वन अमंग्स द क्लिनिकल branches of Ayurveda. Okay, so from the ancient times itself, ये जो snake bite management of Ayurveda है, it has been very globally accepted, yeah, worldwide accepted, and it was very popular in in olden days. Okay, तो Indian philosophies Ayurveda को popular करने में snake bite management ने भी एक बड़ा योगदान दिया है. So that is how, the world travelers have seen Ayurveda. One of its important aspect was the snake bite management. So over a period of time, ये जो treatment या ये जो branch है, वो उतना आगे नहीं बढ़ सका with the modern treatments और बाकी सब जैसे develop होने लगे, कुछ branches ना बिल्कुल पीछे हट गया. और उसमें एक ब्रांच अगत तंत्र है जो बिल्कुल पॉपुलैरिटी उसका कम हो गया और बहुत सारे जो ट्रीटमेंट्स अगत के हैं वो ऐसे ना यूज करने हमको नहीं आया. फिर से जब ऐसा एजुकेशन सिस्टम एक व्हाट यू से कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन सिस्टम फिर से जब आयुर्वेद में रिवाइव हो गया, अगत तंत्र को भी उतना ही फिर से इम्पोर्टेंस मिलने लगा. और अभी आप देखेंगे तो पोस्ट ग्रेजुएशन PhD तक अगत तंत्र डिपार्टमेंट के फैसिलिटीज है. तो इन इंडिया नाउ दिस इज काइंड ऑफ अ रिवाइव्ड साइंस और बहुत सारे पार्ट में इट हैज नाउ ट्रीटिंग विथ अगत तंत्र फिर से वोग में आ गया है. देन तो ये डिपार्टमेंट इट्स नॉट ओनली अबाउट आयुर्वेद टॉक्सिकोलॉजी, देन यू ऑल्सो हैव टू मोर एस्पेक्ट्स. वन इज फॉरेंसिक मेडिसिन भी है और मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस भी है इसमें. ओके, तो फॉरेंसिक मेडिसिन में आपको ये तीनों ब्रांचेस में आपको हम यहाँ पे क्या हमारा फोकस ये रहेगा कि आप रियल लाइफ सिचुएशंस को जब आपके सामने आता है तो आप उस यहाँ के वो ट्रेनिंग आपको रियल लाइफ सिचुएशंस को डील करने में आना चाहिए. ओके, तो वेदर इट इज विथ रिलेशन टू अगत तंत्र या इट इज रिलेशन टू फॉरेंसिक मेडिसिन जहाँ पे मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स आपको एज अ व्हाट यू से प्रैक्टिशनर या एज अ मेडिकल ऑफिसर जब आप कोई भी क्लिनिक में बैठ रहे हैं या आप एक रिसर्चर हो तो फॉरेंसिक मेडिसिन आपको हेल्प करेगा बहुत सारे चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए और एक लीगल बैटल में या लीगल सिनारियो में आपका मेडिकल नॉलेज को या एज एन एक्सपर्ट आपका ओपिनियन उसमें दे सकते हैं. ठीक है, और देन कमिंग टू द मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस. मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस एक ऐसा ब्रांच है जहाँ पे जितने भी स्टेट या गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस है सो विच इज रिलेटेड टू अ मेडिकल प्रैक्टिशनर, उसकी जानकारी आपको यही सब्जेक्ट के थ्रू मिलता है. तो ये दिस सब्जेक्ट इज काइंड ऑफ लिंकिंग यू टू बिकम अ बेटर प्रैक्टिशनर. ओके, फॉलोइंग द गाइडलाइंस एंड लॉस एस्टैब्लिश्ड बाय द कंट्री. ओके, तो ये सभी ट्रेनिंग आपको ये सब्जेक्ट के थ्रू मिलेगा. Okay, I congratulate each one of you for being very successful in your first year journey, and we really look forward to teaching all of you your bright minds. Okay, so we are here all for you. We are here full time. You please come forward, interact with us, and also make your learning experience enjoyable. Thank you. धन्यवाद मैम. अब मैं डॉक्टर शांति भूषण सर को जो हमारे HOD हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे मंच पर आएं और अपने विषय के बारे में संक्षेप में बताएं. Om Dhanvantare Namaha. So respected today's chief guest, Dr. Raghuram Acharya sir, respected principal Dr. Giridhar Vedantam sir, and Bhagavad batch coordinator Dr. Naveen Kodladi sir, dear faculty members, parents and dear students. सभी जानते हैं तो हम संहिता सिद्धांत डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं
सो मेरा नाम डॉक्टर शांति भूषण हंदुरे, HOD डिपार्टमेंट ऑफ संहिता सिद्धांत, डॉक्टर सुमित सर and Dr. Sadhvi Nandan Pandey sir. So we belongs to our department Samhita Siddhanta. We are the branch where we can say it as a Adharabhuta Siddhanta of the Ayurveda. So Ashtanga Ayurveda सभी संहिता से ही आए हैं, तो आधारभूत अगर सही है तो सभी सफल हो सकते हैं चिकित्सा में, इसलिए बोलते हैं कि संहिता जरूरी है। तो संहिता हम आपके साथ थे, रहेंगे और आगे भी आपके साथ चलेंगे। तो ये एक डिपार्टमेंट है, हम ऑलवेज विल बी देयर विथ यू। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ग्रेट सक्सेस एंड फर्दर। सो संहिता में चरक संहिता पूर्वार्ध पढ़ेंगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर में कैसा था, अष्टांग हृदय का 15 चैप्टर हम लोग कंप्लीट किए हैं, चरक का सूत्रस्थान का 12 चैप्टर कंप्लीट किए हैं। आगे हम लोग जो सूत्रस्थान के बचे हुए चैप्टर्स है उसके साथ साथ शायर स्थान, निदान स्थान, बाद में विमान स्थान पढ़ेंगे, इंद्रिय स्थान पढ़ेंगे। तो चरक आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे, डेप्थ नॉलेज लेते जाएंगे, वैसा आप सफल होने के ज्यादा चांसेस रहता है, क्योंकि संहिता आप जितना परफेक्ट होते हैं उतना आप चिकित्सा में सफल हो सकते हैं। तो इसलिए आप प्रिंसिपल्स को अच्छी तरह पढ़ना है, अच्छी तरह उसको प्रैक्टिस में लाना है। और लास्टली आई विश दैट समावर्तन संस्कार तक हम आपके साथ रहेंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू। धन्यवाद सर। अब मैं डॉक्टर यास्मीन मैम, HOD द्रव्य गुण डिपार्टमेंट से अनुरोध करूंगी कि मंच पे आए एवं विषय के बारे में संक्षेप में बताएं। सभी को मेरा प्रणाम। वैद्यो नारायणो हरिः। सो एंड माय डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर यास्मीन हूँ। सो एसोसिएट प्रोफेसर द्रव्यगुण डिपार्टमेंट। सो हमारा डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर श्रीनाथ भी है और प्रिंसिपल सर डॉक्टर गिरिधर वेदांतम सर भी हमारा द्रव्यगुण डिपार्टमेंट में है। एक्चुअली द्रव्यगुण डिपार्टमेंट में ये थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा। इसमें आपको फर्स्ट गार्डन में ज़्यादा विजिट्स रहेगा। प्लांट्स को कैसा आइडेंटिफाई करना है। बहुत सारे प्लांट्स रहेंगे। बहुत सारे बच्चे हमको बोलते रहेंगे सारे प्लांट्स एक जैसा दिख रहा है, सारे ग्रीन कलर में है, पहचान नहीं पा रहे। गार्डन में बहुत सारा विजिट्स करेंगे और प्लांट्स को आइडेंटिफिकेशन करेंगे। आपका सिलेबस में लगभग 100 ड्रग्स के बारे में डिटेल स्टडी करना है। 100 ड्रग्स को पहचाना है, उसका डिटेल स्टडी भी करना है। और लोकल ट्रिप्स के साथ साथ में हमें लोकल यहाँ कुश्मी जंगल, वाल्मीकि फॉरेस्ट भी घूमेंगे। वहाँ पर भी थोड़ा नया नया पौधे को, नया नया मेडिसिन प्लांट को हम आइडेंटिफाई कैसा करना, उसका डिटेल स्टडी क्या है, रिसेंट रिसर्चेस क्या क्या चल रहा है वो भी सीखेंगे। और इसके साथ में हम नेशनल ट्रिप्स भी करेंगे, नेशनल ट्रिप्स, और बहुत सारे जगह पे घूमेंगे। घूमना मतलब सभी लोगों को, स्टूडेंट्स को अच्छा लगता है। और घूम के वहाँ बहुत सारे रिसर्च सेंटर को हमें एक्सप्लोर करेंगे, वहाँ जाकर सीखेंगे नई चीज़। और उसके साथ में और थोड़ा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज भी जाएंगे, क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में यहाँ आप लोग देखेंगे कैसा मेडिसिनल प्लांट को आइडेंटिफिकेशन करना है। वहाँ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में जाकर उसका फॉर्मुलेशन कैसा बन रहा है, कैसा वो सेलेक्ट कर रहा है, उसका क्वालिटी कंट्रोल क्या है, स्टैंडर्डेशन कैसा कर रहे हैं, ये सारे आप सीख जाएंगे। उसका लेबलिंग कैसा कर रहे हैं, ब्रांडिंग क्या है, उसका प्रोडक्ट कैसा बन रहा है, ये सारे आप सीखेंगे। इसके साथ में हमको क्वालिटी कंट्रोल, स्टैंडर्डेशन का नाम सुनते ही आपको याद आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, उसमें बहुत अडल्टेंट्स भी होता है, सब्स्टिट्यूट्स भी होता है, उसमें सही वो जो सही मेडिसिन प्लांट होता है उसे पहचानना है। उसके लिए क्वालिटी कंट्रोल, स्टैंडर्डेशन होता है। हाँ, इधर भी आपका सिलेबस में है, फिजिकोकेमिकल, फाइटोकेमिकल स्टडीज भी है। इसके साथ साथ में माइक्रोस्कोपिक स्टडीज भी है, अडल्टेंट का माइक्रोस्कोप स्टडीज भी है। और ये सारे हमारा लैब में होगा, सारे इक्विपमेंट भी है। सोफिस्टिकेटेड लैब है हमारा। उसमें आप सारे फाइटोकेमिकल, फिजिकोकेमिकल के बारे में सीख जाएंगे। और वहाँ ड्राई ड्रग्स म्यूजियम भी है। ड्राई ड्रग्स दिखने में सारे ब्लैक कलर में दिखता है, सारे एक ही जैसा दिखता है। वो फ्रेश में पहचान पाएंगे बट ड्राई स्टेट में पहचान नहीं पाएंगे। तो उससे कैसा पहचाना है।
इसी अकॉर्डिंग आप बहुत सारे ड्रग्स का सीखेंगे म्यूजियम में। इसके साथ में और एक इम्पॉर्टेंट चीज है सिंगल ड्रग थेरेपी। आपको क्लिनिकल भी है, सो हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा पेशेंट्स को। आप क्लिनिकल स्टडी करना है, केस टेकिंग है और उसके साथ में आप कैसा सिंगल ड्रग थेरेपी को प्रिस्क्राइब करना है वो सीखना है। सो इसमें मॉडर्न फार्माकोलॉजी भी है आपको। सो मॉडर्न फार्माकोलॉजी में सारे मॉडर्न ड्रग्स का फार्माकोलॉजी आप सीखना है, हर एक सिस्टम का। सो मॉडर्न फार्माकोलॉजी और सिंगल ड्रग थेरेपी, हमारा आयुर्वेदिक फार्माकोलॉजी भी है, मॉडर्न फार्माकोलॉजी भी है, और इस दोनों को आप कोरिलेट भी कर सकते हैं। सो इतना ज्यादा है द्रव्य गुना 1.5 ईयर प्रोफेशन में कंप्लीट करना है, बट ये तो बड़ा ओशन है। सो 1.5 ईयर में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, बट 1.5 ईयर में आप बेसिक थिंग्स सीखेंगे और लाइफ लॉन्ग आप द्रव्य गुण के साथ में रह के ही चलना पड़ेगा आयुर्वेदिक डॉक्टर बनना है। तो आई एम विशिंग यू ऑल द बेस्ट इन योर सेकंड प्रोफेशन। हमारा साथ चलो और बहुत मेहनत करना है, ये ड्रग्स के बारे में स्टडी करना है। तो मैं आशा करती हूँ आप मेहनत करेंगे और कॉलेज के लिए, पेरेंट्स के लिए आप बहुत बड़ा अच्छा नाम भी कमाओगे। थैंक यू। धन्यवाद मैम। अब मैं डॉक्टर वैशाख सर, एचओडी स्वस्थ वृत्त से अनुरोध करूंगा कि मंच पे आएं और अपने विषय के बारे में संक्षेप में बताएं। Good morning, respected Raghuram sir, respected principal sir, Giridhar sir, and Naveen sir, respected parents, my faculty members, and my dear students. Okay, now you already completed one battle, enough. Okay, first year you completed. How was your vacations? Why everyone is serious? Be cool, okay? So we completed first year. So we have started studying the basics. Okay, second year is next level of basics. Okay. So final battle is final year, most of these clinical subjects. So we are preparing for this final battle. Okay. So second year में मेरा subject Swasthavrta and yoga है. What do you know about Swasthavrta? Anybody knows Swasthavrta? What is the प्रयोजन of Ayurveda? हाँ, क्या है वो, क्या है? What is that? So prevention, what? Prevention treatment. Okay, so prevention side comes in Swasthavrta, basically community medicine or preventive medicine. Okay, so this subject का वो चीज क्या है वो we will discuss in classes. So it is a 2-paper subject. Okay, first paper and second paper. And मेरा department में मैं अकेले है. Okay, so the battle is more difficult. Okay, and there is one more staff, that is Chandrajit ji. It's a yoga instructor. Okay, subject 400 mark का subject है. So 2 papers है, practicals, etc. So mainly first time में क्या है, basically you studied this samhita में dinacharya, rucharya, everything you have studied. Okay, so second paper में आएगा क्या, community medicine का core. Okay, so you have more than 30 students scored distinction. Okay, I think it is a good batch. Expecting more from you people. Okay, all the very best for your future and the second year. Okay, thank you. धन्यवाद सर। अब मैं डॉक्टर नवीन सर, एचओडी रसशास्त्र डिपार्टमेंट से अनुरोध करूंगी कि कृपया अपने विषय के बारे में बताएं। Okay, we have respected dignitaries on the dais. We have 4 limbs of the treatment: Vishak Dravyani Pastat, Rogi Pada Chatushtayam, the doctor, nurse, drug, and patient. 4 limbs. So drug aspect is taken care by Draviguna as well as Rashastra. So Draviguna, there will be raw materials, raw herbal materials predominantly dealt, and we are dealing with the preparation of medicines. Preparation of medicines basically it can be herbal or herbominerals. So herbal medicines are mainly dealt in Vaishya Kalpana, whereas herbomineral medicines are dealt in Rasa Shastra. So there are 2 papers, Aushadhi Nirmana Vidhi and Aushadhi Prayoga Vidhi. There are 2 papers are there. So in the herbomineral preparations, we have the Rasa Shastra, but the word itself, Rasa means it is, there are different meanings for Rasa. In Rasa Shastra, the Rasa is mercury.
So mercury is an important ingredient of thousands of formulations. Perhaps it is only the medicine which is a common ingredient for thousands of formulations in any system of medicine. So because of its ability to enhance the other medicines, so bioavailability enhancer, yoga vahi property it is having. So there are various herbomineral medicines. Metals are used, gemstones are used, or poisonous herbal drugs are also used after purifications. And metals and medicines are not used directly as a medicine. So there are some processes involved, purifications and incineration. So the metals is made in as a medicine, is converted into medicine, so it should be bioassimilable, so that form has to be attained. So for that there are some processes, we will study that processes. And what are the drugs, so we will study those drugs also. There are different dosage forms in Vaishya Kalpana, including what we use in the kitchen also. We take some juices, we make some chutneys also, we make some kadas also at home. So we have swarasa, kalka, quathas, or this hot infusions or cold infusions. You make chai, that is also a kind of preparation, in a medicine. So chai or coffee. So such kind of preparations are also there. Then we have different solid dosage forms, like tablets are there, powders are there, liquid dosage forms are like the decoctions or syrups or asavas, arishtas, and semi-solid there are avalihas. So and some rasa preparations, popularly basmas, which is one of the most popular dosage forms. So we will study all these, how to prepare and what are its uses, what are their relevance. So in details. Okay. Thank you, Ananda. धन्यवाद सर। अब मैं डॉक्टर सुमित कुमार एम सर से अनुरोध करूंगा कि मंच पे आए तथा एक विद्यार्थी के जीवन में पीटीएम के महत्व को समझाएं। Respected Chief Guest, Dean, Students Affairs, Dr. Raghuram Acharya sir, respected Principal, Dr. Girdhar Vedantam sir, Coordinator of Walkbut Batch, Naveen Kodladi sir, my fellow faculty members, respected students, and dear parents. I just got the smile when I came to the stage that what is the importance of PTM in students' life, है ना? ये टॉपिक का महत्व क्या है, ये आप लोगों के भी मन में एक शंका है। ऐसे जैसे टॉपिक मुझे दिया गया था तो मुझे भी लगा क्या बोलना है इस पे। But now I came to know that what I should talk over here. What is the meaning of PTM? Because as I can see that even though 35 members agreed that they will be bringing their parents, many of the parents are not here. Only few members came. I got many calls also saying that many train got cancelled. There are some other difficulty and all those things. We accept that, it's very much true. And I still have a feeling that many of the students might have thought that PTM में टीचर जो उनके प्रॉब्लम्स है उसके बारे में ज़्यादा बात करेंगे, है ना, कंप्लेंट्स ज़्यादा कर सकते हैं, इसलिए हम उनको स्किप कर सकते हैं। ये भी हो सकता है ना, है कि नहीं? नहीं है, बट स्टिल आई वांट टू टेल यू दैट व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पीटीएम। इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है, दिस इज बीन गिवन बाय आवर स्टैट्यूटरी बॉडीज, एनसीएसएम ने भी कहा है, यूजीसी ने भी इसका मैंडेट दिया है, बट अलॉन्ग विद दैट आवर ऑनरेबल चांसलर Yogi Adityanath Ji Maharaj is very much interested that parents should be involved in the curricular development of each student. They are the end stakeholders of this institute. Parents के वजह से ही कॉलेज चल रहा है कि नहीं? You are being brought up over here just because of your parents. So उनको पता चलना चाहिए कि आपका हर एक स्टेज पे डेवलपमेंट क्या हो रहा है, क्या तकलीफ आपको हो रहा है, any other than curricular प्रोग्रेस यू आर मेकिंग, जैसे कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर थिंग जैसे प्रगति ने किया है. सो दिस आई डोंट नो हाउ मच प्रगति's parents might be knowing about her achievements, but when it is being told by the teachers or by their guides that क्या किया है, जैसे बहुत सारे लोगों को स्पार्क प्रोजेक्ट मिला है. So these are the moments that make your parents actually proud. So we want to disseminate that information to your parents, and we want to make them know that what is the track that your pal or your student or your child is going through. So this was the main aim of bringing about this PTM meeting, so that each and every step of your career or your curriculum is being known to them.
And of course, bringing home near to college is an aim for this, because many of you have difficulties in acclimatizing with this situation. नया सब्जेक्ट्स है, नया, जैसे अभी 5 HODs ने बहुत सारे चीज बोल दिए, यू मे बी ऑल्सो फीलिंग दैट कहाँ आ गए हम लोग. फर्स्ट ईयर में तो केवल 3 ही सब्जेक्ट थे, 3 ही फैकल्टी थे, अभी बहुत सारे और एक्स्ट्रा हो गए. सो पेरेंट्स का मॉरल सपोर्ट, एंड दे शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड व्हाट इज द वर्कलोड और प्रेशर दैट यू आर हैविंग. तो इन सब चीज़ों को बताना, और उसके साथ साथ जो स्टैट्यूटरी बॉडीज का नॉर्म्स है कि ट्रांसपेरेंसी को बनाए रखना, कि what is, we don't want to hide anything from your parents, nor we want your parents to hide anything from us. It's a exchange of information between each other. तो ये सब करने के मकसद से इस PTM को रखा गया है. It's very unfortunate that many of the parents are not here, but I wholeheartedly welcome the parents who find time to come over here physically, and those who join online also. But don't think that this will stop over here. जब तक आपके पेरेंट्स से हम नहीं मिल लेते, हम इसको बंद नहीं करेंगे. ठीक है? So wait for another instance where your parents will be meeting the teachers. Thank you very much. Thank you all. धन्यवाद सर. अब मैं आदरणीय डॉक्टर रघुराम आचार्य सर से अनुरोध करूंगी कि अपने शब्दों से हम विद्यार्थियों को आशीर्वाद प्रदान करें. Very good morning. Am I audible? Sharire jarjari bhute. Do you know this shloka? Do you know? No. Sharire jarjari bhute vyadhigraste kalevare aushadam jannavi toyam vaidyo narayano harihi. That's the complete shloka. Submitting my pranams to the Lord Dhanvantari, I take this opportunity to address the parents as well as the students in this parents-teacher meeting. Thank you, Dr. Giridhar Vedantam sir, our honorable principal, for giving me the opportunity to address this gathering, and also Dr. Naveen Kodladi sir, class coordinator, for all the arrangements he has made to ensure that this parents-teacher meeting can be conducted, and also the ceremony of the second professional journey of BAMS begins for your academic career. I in between हिंदी में भी बात करूंगा थोड़ा, तो अगर कुछ गलती है तो क्षमा कर दे, और बाद में आप करेक्ट भी कर सकते हैं. आई एम ओपन टू इट. ये अवसर बहुत अच्छा है, स्पेसिफिकली बिकॉज यू आर गेटिंग, जब आप पहले आए थे तो यू आर नॉट नोइंग अबाउट आयुर्वेदा कंप्लीटली. नाउ यू हैव बीन इंडक्टेड ऑलरेडी. नाउ यू आर नाउ प्रोग्रेसिंग फर्दर. You are already graduating. Graduating means there is some gradual change. You didn't know anything about Ayurveda previously. Now you know something about Ayurveda. Your eyes are opening to the internal parts of your body. You are studying the you have studied physiology, biochemistry basically. Then now you are trying to know the therapeutic part as well, diagnostic part of it as well, and also about all the rituals which are existing in Ayurveda. एक आप पेरेंट्स के लिए एक बात है कि यू हैव चोजन अ वेरी गुड, ये जो क्षेत्र है या कॉलेज संस्था है, बहुत अच्छा संस्था है, और आपके सब जो बच्चे हैं वो सही हाथों में है. और ये बात मैं जान के अच्छा लगता है, क्योंकि जब जो पढ़ा रहे अध्यापक जो है वो हर जगह के है. मैं भी कर्नाटक से हूँ. जब मैं आया था मुझे आश्चर्य हो गया था कि कैसे बात करूँ, कैसे, पर पता चला कि नवीन सर कर्नाटका से है, सुमित सर कर्नाटका से है, और कई लोग मिनिमम केरला से है. अच्छा लगा. सर हैदराबाद से है, तो अच्छा लगा. सारा हिंदुस्तान जो है वो मिल रहा है, एक जगह मिल रहा है, भारत एकत्रित होके मिल रहा है. वो अच्छा संदेश है. और विशेष तौर पे जो फैसिलिटीज यहाँ पे बनी है, स्पेसिफिकली द पंचकर्मा सेंटर इज अ अट्रैक्टिव सेंटर.
सो हम पहले आने से पहले ये देख रहे थे कि कैसा है गांव, कैसा है यूनिवर्सिटी, कैसा है। तब इफ यू कैन सी गूगल मैप में अगर जूम करके देखोगे तो एक छाप बन चुका है कि पंचकर्मा का जो सेंटर है जिस पे हम है इज अ वेरी आइकॉनिक सेंटर, एंड फॉर स्टूडेंट्स यू आल्सो इट इज एन आइकॉनिक सेंटर, राइट? So anywhere you go in the world after this, as a practitioner, you will say, just zoom in to these coordinates on the Google map. You will find from where I belong. So that is the footprint. They call Vishnu Pad रहता है ना, ऐसा ये पाद बन के खड़ा है, तो you are originating from this center. So that's a very unique center. And as I've heard, there is a lot of activity which is going on in Ayurveda. बहुत काम कर रहे हैं, and I appreciate that. I was an NSS program coordinator back in my previous institution. So इससे पता चलता है कि you are also very much involved. जब मैंने देखा गूगल में सर्च किया या ट्विटर में सर्च किया, so I saw lot of students participating in the events. In other institution, what happens is any event is there, सिर्फ हमारा ही फोटो लगता था, but here I saw a lot of students doing activities, and I also got the information from sir that you are all participating in NSS. You are participating, entire class is participating, if I'm not wrong. And in the last conference I heard that you are involved in lot of screening camps, and you also undertake lot of Sharira, what is the program exactly called? Prakriti Parikshan schemes, and also you have done it. So that's a very important thing, and that gives you a lot of exposure. Oh, exposure, like you usually in our university we had previously, if 500 students were there, we were asking only 100 students to participate in NSS. But now I hear that you have 12 NSS units in the entire university. That's a very good thing. And sir said that the entire class is an NSS unit by itself. So that's a very, very important thing. उससे क्या होता है, आपका जो प्रोफाइल है, resume है, वो अच्छा बन जाता है कि you have done a lot to the society as well. Believe it or not, I wrote lot of recommendations for people to go abroad, be it in US or in other countries like Germany, France, Italy, Israel, or even in China. So whenever we wrote recommendations, we used to write what are their skills in the domain and also extracurricular activities, and what are their societal contributions. So इस तौर पे जो आप काम कर रहे हैं, you are going in nice direction, but also you can uplift yourself and make more skillful, make the best out of all these opportunities. So now, as the Dean of Student Welfare, what I would like to address you is, as this is a new institution, it is looking at different phases of growth. You have got the right opportunity to contribute towards the organization. That's very, very important. आप contribute कर सकते हो, हाथ से हाथ मिला सकते हो, and I also seen you have been doing that. For example, मैंने देखा कि YouTube चैनल में जो वीडियोस थे इंस्टीट्यूशन के बारे में, कैंपस के बारे में, you have made those videos by yourself. Was this from your batch? No, your seniors have made it. So उससे और एक श्लोक याद आता है भगवत गीता का, जो तीसरा अध्याय का है, यद्यद् आचरति श्रेष्ठाः तत्तदेवेतरो जनः. Do you know this shloka? Many of the professors know, but what do you know this shloka? No, सीखेंगे अब. यद्यद् आचरति श्रेष्ठाः तत्तद् एव इतरो जनाः. So continuous it is यद्यद् आचरति श्रेष्ठाः तत्तदेवेतरो जनाः सयत् प्रमाणं कुरुते लोकस् तदनु वर्तते. So what the seniors or the learned ones are practicing, performing, you are going to see that as the ones below them are learners. So we are also learning from all the daily experiences. Yadyad acharati shreshtaha tattadevetara janaha. We are practicing. See, we are human beings. Did we know that we have to come here and speak in front of the mic? No.
Okay, where we continuing to be, we could be like monkeys. We wouldn't have done all these arrangements. We would have sat somewhere and done something. So we are transforming ourselves into a better society. Okay, we are evolving. So all these practices, parents, teacher meeting, you might say it might be a practice of a school, but this is a very integral practice. Your parents are much more careful. आप बहुत ध्यान से इनको जैसे what are they becoming in another 5 years is a very important thing. बचपन में अगर ABCD सही सीखा या नहीं वो चलेगा, पर अब जो है वो सही सीख रहे हैं कि नहीं वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा. और हमारा आग्रह है कि आप फॉलो कीजिए कि वो अच्छा कर रहे हैं क्या नहीं. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. छोड़ के ऐसे ही अच्छा पढ़ रहे हैं तो अच्छा संस्था में यू हैव टू कम हियर. ऑल द पेरेंट्स से आग्रह है, if it is being aired or the recording is being sent for the parents to come over here. You also indulge. Soon we'll have an ERP system where your parents also will have access to your whereabouts of the college and your performance as well. So that will also help in ensuring that you have the connect. And also I'm given to understand that there is mentor-mentee relationship. Okay, please make the best utilization of it. एक technology है or some system is there. If you don't utilize it, you are at loss. Not the parents, not the teachers. You students are at loss. Why I'll tell you is specifically again, Yadyad Acharate Shrestha. In your practice, the best mentors will help you a lot. So try to tag yourself with the respective mentors and learn more from them. And that will be like an era. So you are from you are a student of so and so professor, you have studied under so and so, that will become a chap, सिक्का बन जाएगा आपको for the next 30-40 years for your practice. Am I wrong? Am I correct? Yes, because if you ask any of your professors, they would say I am a student of so and so professor. Be it they would have taught a very small topic, पर उनका contribution बहुत बड़ा रहेगा. So you will contribute. I also remember the grades of biochemistry who have taught me. So like that, you would have aligned yourself to the mentors. So please tag yourselves with them and do something productive as well. इस अवसर पे कहना चाहूंगा कि you will take this opportunity to publish papers as well. See, in last 5 years, we did a drastic change in our teaching way. Instead of asking for students to write the same old assignments, we started asking them to write book chapters or review articles with us. Believe it or not, 25 of my students have published publications. You can go to Google Scholar, which is accessible easily. Under my name, you can see my students who have contributed. They were from BSc, MSc, PhD. PhD to karte hi hai. MSc very rarely. BSc to it is not at all that they publish. So it is right time you are in your relationship with the mentor-mentee is for 5 years. So you can easily publish 2 or 3 articles very easily. It doesn't take any stress. If you need some hand holding, etc., we are always available. Sir, I would request sir as well, if there are some sessions which we can do on research methodology where we can come across and certain problems, define those areas in the respective departments, and you, based on your mentor-mentee relations, you can continue to work on that. Or if you like other topics as well, you can definitely work. But the output is entire India mein you will be the class of BMS students with through 2 or 3 papers. This would be a unique selling proposition for your yourself. In your CV, if you have 2 to 3 publications, that would be a wonderful thing in your career. Okay, so try to think about all these scenarios and utilize this opportunity. Okay, ये जो परिसर मिल रहा है आपको, utilize to the best of its extent, and also you have accessibility to medical, pharmacy, agriculture. So ma'am told about plants being produced, right? And you are going to have the view of medicinal plants. Try to learn the best techniques which grow the best of the plants. Okay, and how do you practice that? So that can be a wonderful
value addition for your career as well. That will help you to get employed as well, because in the last conference they were mentioning they're not getting proper practitioners, and that's why they can't give you jobs. In one of the conferences, Ayurveda conferences, there were industrialists who were there. So once you are very well equipped with all this extra information of running an Ayurvedic industry, you are well into a job. So okay, so try to make the best of all the opportunities. So I think I have not exceeded it in time. With this, if there are any queries or any thing with which we can help you out through your principal sir, you can definitely reach out and we'll be at your service. Okay. And so parents के लिए ये जानकारी है कि अगला पेरेंट्स टीचर मीटिंग में पेरेंट्स ज्यादा होना चाहिए और स्टूडेंट्स तो रहे ही ना, तो वो भी अच्छा है. पेरेंट्स एंड टीचर्स शुड मीट. थैंक यू. थैंक यू. धन्यवाद सर. अब मैं डॉक्टर गिरधर वेदांतम सर से अनुरोध करूंगा कि हमारे आदरणीय अतिथि को स्मृति चिन्ह प्रदान करें. अब मैं डॉक्टर गिरधर वेदांतम सर से अनुरोध करूंगा कि अध्यक्षीय उद्बोधन प्रदान करें. ओम धन्वंतरये नमः. श्री गोरखनाथाय नमः. हमारा ये संस्था गोरखनाथ जी की महिमा से चल रही है. हमारा महाराज जी, हमारा प्रियतम मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की जो नेतृत्व में चल रही ये संस्था, ये विश्वविद्यालय के अंतर्गत हमारा आयुर्वेद कॉलेज भी वही दिन प्रारंभ हुआ जिस दिन हमारा ये महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय शुरू हुआ. तो हम दोनों एक ही साथ इधर जन्म लिए. ये बहुत पवित्र स्थल है. ऐसी संस्था जहां हमारा भारतीय संस्कृति का, सनातन धर्म का, उसका भूमिका लेके उसको ऊपर लाने के लिए एक कृत निश्चय वाला है. उसके साथ जो जो आधुनिक तकनीक रहते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, उसको भी लेना हमारा संस्था का लक्ष्य में है. तो पूरा हम आजकल की व्यवस्था में हमारा सनातन संस्कृति, हमारा इंडियन नॉलेज सिस्टम बोलते हैं, जो भारतीय वैज्ञानिक परंपरा को लेके उसको सुसंस्थित करते हुए आजकल की जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, जो है शास्त्र और जो तकनीकें हैं, वो सबको भी हमें इसमें अंतर्गत करते हुए आगे बढ़ना चाहिए. क्योंकि आजकल की जो समाज में हम आजकल की जो शास्त्र है, टेक्निक्स है, आईटी है, ये सबको भी हमने हमारे आयुर्वेद के साथ जुड़ के लोगों में लोकप्रिय होना चाहिए. हम अकेले नहीं रह सकते. अकेले आयुर्वेद का पुरानी काल का जैसा हम रहने से नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा विश्व भर में जो जो हो रहे हैं ना, हम उसके साथ मिलके जाना पड़ेगा. तभी हम बोलते हैं ना, प्रासंगिक बोलते हैं. तो ये काल के लिए हम फिट होंगे, नहीं तो नहीं फिट होंगे. तो इसी के लिए हमारा संस्था दोनों को मिल के लेने के लिए ये बनाए हैं. इसीलिए ये विश्वविद्यालय में मेडिकल कॉलेज भी है, आयुर्वेद कॉलेज भी है, फार्मेसी कॉलेज भी है, नर्सिंग कॉलेज है, एग्रीकल्चर कॉलेज है,
मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी है। अभी हमने इसी बार की हमारा जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वो निर्णय लिया कि और भी नया कोर्सेस लाना है कि जो आर्ट्स में है, लैंग्वेज में है, उसको भी, कॉमर्स को भी लेके कुछ कोर्सेस चलाना है और बाद में इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का भी लेना है। ये यूनिवर्सिटी सोच रही कि क्योंकि हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो नया शिक्षा विधान जो भारत सरकार ने दिया है, उसके हिसाब से भी जो विश्वविद्यालय रहता है वो उसके पास सब विद्याएं, शास्त्र एक ही जगह रहना चाहिए कि विद्यार्थी जो चाहे वो सबको सीखने का एक जगह मौका मिलेगा। तो हमारा विश्वविद्यालय इसीलिए सबको एक जगह रख के जो भी विद्यार्थी दूसरा सब्जेक्ट से, दूसरा शास्त्र सीखना चाहे तो इधर उसको बहुत चॉइस मिलेगा, हम उसको देंगे। और आज हमारा दो है, एक है हम जो हमारा BAMS विद्यार्थी है, अपना फर्स्ट प्रोफेशन, प्रथम जो भाग है अभी ये विद्या में हमारा 3 भाग है 18 महीने का। पहले 18 महीना खत्म हो गए और 2 18 महीने का है। अभी आप दूसरी 18 महीने का हम बोलते हैं प्रोफेशन बोलते हैं उसको, तो उसमें आ गए हैं। इसमें अभी आप लोग सब लोग मालूम हुआ कि आपको इसमें 6 विषय हो गए, रसशास्त्र, वैषज्य, कल्पना, द्रव्य गुण, रोग निदान, अगतंत्र, स्वस्थवृत्त और जो चरक संहिता का कुछ स्थान हमने लेके पढ़ने वाले हैं। तो ये भाग जो है आपको पहली बार आपको हमारा अस्पताल में जाके सीखने का मौका देगा। तो पहले आपने अर्ली क्लिनिकल एक्सपोजर के तरह आपने बीच बीच में हॉस्पिटल में गए या हेल्थी जो स्वस्थ पर पुरुष का प्रकृति परीक्षा करना सीखें, मगर अभी पहली बार आप एक व्याधि पुरुष बोलते हैं ना, जो डिसीज्ड पर्सन का देखने का चांस मिलेगा और उसके साथ उसमें क्या दवा दे रहे हैं, कैसा उसको हमने पथ्यापथ्य बोलते हैं ना कि उसको क्या खाना है, नहीं खाना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, ये सब जो बोलने का विधान है वो सब आपने सीखेंगे कि हमारा अस्पताल में जाके आप पेशेंट को परीक्षा करेंगे और उसका व्याधि निश्चय कैसा करना है सीखेंगे और उसमें क्या दवा देते हैं उधर वो भी देखते हैं और हमारा क्लासेस में आप पढ़ेंगे कि क्या औषध देना है। इसीलिए हमारा जो आयुर्वेद में बोलते हैं हेतु लिंग औषध ज्ञानम, सो त्रिस्कंद है, हेतु स्कंद, लिंग स्कंद और औषध स्कंद बोलते हैं। हेतु बोले तो जो जो कारण है व्याधि का अभी वो आप सीखेंगे और उसके साथ आप सीखेंगे कि स्वस्थ का लक्षण भी सीखेंगे, उसके साथ क्या हेतु है वो सीखेंगे और औषध क्या देना है, औषध में हमारा मूलिका औषध क्या देना है, रसौषध क्या देना है, कैसा हमने औषध कल्पना कर सकते हैं और दे सकते हैं, ये सब आप अभी ये द्वितीय जो पटल है हमारा प्रोफेशन जो है उसमें आप सीखने वाले हैं। उसके बाद आप जब तृतीय में जाएंगे 18 महीने के लिए तब आप पूरा जो चिकित्सा का जो है वो शास्त्र में जाएंगे और उसमें चिकित्सा कैसा करते सीखते हैं। तो आप ये अभी जो दूसरी जो है ये बहुत आपको इम्पोर्टेंट है, आप इसमें सीखे तो थर्ड में इजी होगा। और हम हर बार बोलते हैं कि NCSM भी बोल रही है कि 75% का जो अटेंडेंस होना है, नहीं तो एग्जाम में रुका जाएगा, जो वो सब सबको मालूम होना चाहिए, आपका अभिभावक को और आपको भी। अभी हमें हमारा विश्वविद्यालय भी निर्णय लिया है और हमें NCSM भी दिया है कि जिसको 75% का जो अटेंडेंस नहीं है उसको परीक्षा में नहीं बिठाना चाहिए, 6 महीने रुक जाएगा। एक बार 6 महीने रुके तो आपको मालूम है कि वो हर बार 6 महीने रुकेगा, उसका BAMS कोर्स भी 6 महीने रुकेगा। उसके कारण वो जो एग्जिट एग्जाम जो आपको रजिस्ट्रेशन करने वाला एक परीक्षा अभी रखे हैं वो भी परीक्षा उस साल नहीं लिख पाएंगे, अगले बार आपका जूनियर के साथ लिखना पड़ेगा, तो 1 साल नुकसान हो जाएगा आखिर। तो आप सबको हमारा ये कि कोई भी अपना जो अटेंडेंस है आप मेंटेन करिए। दूसरा,
हमारा जो इंटरनल जो परीक्षा होते हैं उसके ऊपर भी आप श्रद्धा पूर्वक आपका प्रयत्न करें, क्योंकि हमने हर परीक्षा जो इंटरनल होते हैं हमने उसको लिखित वाला नहीं रख रहे हैं, क्योंकि एनसीएसएम भी बोला है कि परीक्षा अलग अलग तरीके को होना। हमने इसीलिए आपको कुछ बार एक बार प्रोजेक्ट देते हैं, एक बार आपको कुछ करने के देते हैं, कुछ बार आपको ऐसा ही चर्चा में रखते हैं, प्रेजेंटेशन करने का बोलते हैं। तो ये सब में फील्ड विजिट में लेके जाए तो फील्ड विजिट का भी हमने उसमें रखते हैं, सेमिनार अटेंड करे तो करते हैं। ये सब में आपको इंटरनल में मार्क मिल रहा है, तो ये सबको आप अच्छा उसको लेके ज्यादा मार्क्स पाने का आपको एक अवसर मिलेगा आपको, तो उसको आप अच्छा यूटिलाइजेशन करिए उसको। तीसरा, हमारा ये संस्था में अलग अलग चल रहे हैं। हमने आपके लिए अभी हमारा डीन स्टूडेंट वेलफेयर जो डॉक्टर रघुराम आचार्य जी आपके सामने बोले हैं, वो हमारा यूनिवर्सिटी लेवल पे हमारा स्टूडेंट वेलफेयर का है। अब हमारे संस्था में भी, हमारा कॉलेज में भी हमने अलग अलग व्यवस्था रखे। एक प्रथम व्यवस्था है मेंटर मेंटी, हमने जनवरी में शुरू किया, आप वही टाइम में एग्जाम में गए तो इसीलिए आपने उसमें ज्यादा ये नहीं हो रहा था, मगर अभी आए हैं, आपका मेंटर का लिस्ट है, तो हर 3 या 4 बच्चों को एक मेंटर होगा, वो पूरा कोर्स खत्म होने तक वही होगा। तो आप उनसे क्या करना चाहिए बोले तो वो आपका जो माता पिता जैसा है इधर, क्योंकि हमने देखे हैं, हम ही नहीं पूरा अभी गवर्नमेंट लेवल पे भी, सरकारी लेवल पे भी बोले हैं कि एक मेंटर मेंटी होना, क्योंकि हम पहले हमारे पास पहले भी देखे थे, हमारा एक क्लास कोऑर्डिनेटर रहता है, तो 100 लोगों का एक क्लास कोऑर्डिनेटर, तो आपका जो बोलने का है आप नहीं बोल सकते हैं, हमारे तब तक नहीं आ रहे, तो हमने सोचा ये जो मेंटर सिस्टम रखेंगे कि एक 3-4 लोगों का एक फैकल्टी रहेगा कि आप उनसे कभी भी उनका कांटेक्ट में रह सकते हैं, आपका कुछ भी तकलीफ है तो उनसे बात कर सकते हैं, जैसा आपका माता पिता से बात करते हैं आप मेंटर भी, गुरु आल्सो जो है वो भी माता पिता जैसा है, तीनों समान है, तो आपका कुछ भी रहे तो आप मेंटर से बात कर सकते हैं। आप कभी भी क्लास में एक पीरियड भी नहीं अटेंड कर पा रहे तो मेंटर के पास आप उनसे बात करके उनका परमिशन लेना जरूरी है। 1 घंटा भी आप क्लास में नहीं आ पा रहे, लेट आ रहे, तब भी मेंटर को फर्स्ट आपका पहली बार किसको बोलना है, आप पहली बार आप बोलना है मेंटर को। आप आ रहे, लेट हो गए, रोड पे रुक गए, 1 घंटा आधा घंटा लेट होने वाले क्लास को, तब आपका मेंटर को फोन करके बोलना चाहिए, सर मैंने ऐसा ट्रैफिक में फंस गया हूँ, मैं आने के लिए एक 10-15 मिनट लेट होगा, आप मुझे परमिशन दीजिए। तो इसके बिना आप क्लास में नहीं आ सकते हैं। देखिए देयर आर अभी अलग अलग तरीका है, एक है प्रेम, आप सबको ज्यादा सौकर्य करने का, आप सौलभ्य करने का, ये सब है, मगर उसके साथ जब लोग नहीं सुनते ना उसके लिए कार्यवाही होगा, दंडवा कार्यवाही के लिए भी रहेगा। आप सब जब नहीं सुनते हैं, आप किसी को बोलते नहीं है, मेंटर को नहीं बोलेंगे, क्लास अटेंड नहीं करेंगे, तो हम आपके ऊपर कार्यवाही ले सकते हैं, है ना। तो आपका इंफॉर्मेशन आपका अभिभावक तक जाएगा, आपका माता पिता को जाएगा कि ये क्लास नहीं अटेंड किया, क्योंकि एक दिन भी 1 घंटा भी क्लास में नहीं आया तो हमने बोलने का तरीका अभी हमने हमारा कंप्यूटर का सिस्टम से बनवा रहे, थोड़ी देर में आ जाएगा, आपका पेरेंट को इंफॉर्मेशन जाएगा कि आज क्लास में आप नहीं, हॉस्टल में नहीं है, ये सब समाचार आपका पेरेंट को जाएगा। ये क्यों करना है, ये अभी स्कूल बच्चे जैसे आपको कंट्रोल करने के लिए नहीं कर रहे, ये दंडवाही की तो पीछे वाला है, कोई आगे नहीं लाना चाहते हैं, हम चाहते हैं प्रेम से बात करें, मगर कुछ जगह बच्चे उसको ज्यादा क्या बोलते हैं ना, लापरवाही करते हैं उसको, वो सोचते हैं कि कुछ टीचर कुछ नहीं करेंगे, कॉलेज कुछ नहीं करेगा, और बच्चे कुछ बिगड़ जा रहे हैं, तो बाद में क्या होगा, आपको ही नुकसान है, आपको ही नुकसान है कि आप क्लास नहीं अटेंड कर रहे, 10 क्लास अटेंड नहीं किया, आपका सब्जेक्ट पूरा गया। आप क्लास अटेंड बिना करके अब जाके बाहर घूम रहे, बाहर फाइटिंग हो सकता है, बाहर एक्सीडेंट हो सकता है, आप कॉलेज नहीं आके बैठ के सेलफोन पे बैठ के आप एडिक्शन बनते हैं,
देर आर सो मेनी थिंग्स। सब्सटेंस अब्यूज बोलते हैं, कुछ लोग गांजा में ये जाते हैं, आईपेन में जाते हैं, ये क्या है ना, अरक या जो मद्यपान में जाते हैं, सिनेमा में लग जाते हैं, नेट में जाते हैं, बहुत है। क्योंकि ये एज जो है, आपका जो वयस है, इसमें पलटाव होने का बहुत ये है। तो हम आपके पीछे ऐसा रह के डंडा मार के रहने का लिए नहीं है, मगर हम चाहते हैं कि आप एक लाइन पे रहे। आप इधर क्यों ज्वाइन हो गए कि एक वाइज बने, ये सोसाइटी में आपको एक अच्छा स्थान मिले। आप वाइज बनने से आपको पैसा मिलेगा, नाम मिलेगा, आप सोसाइटी में एक ऊपर ये रहेंगे। तो ये सब मिलने के लिए तो पढ़ना चाहिए, हर दिन आना चाहिए। ये सब छोड़ के नेट में फंसे हुए हैं, या कुछ जो नहीं आना चाहिए, जो बोलते ना मदिरा नहीं होना चाहिए, या जो स्मोकिंग नहीं होना चाहिए, या कुछ नेट में फंसना नहीं चाहिए, ये सब जो है बच्चे सडनली फंस जाते हैं। आपको मालूम नहीं होता है कि लोग फंसाते हैं आपको, क्योंकि वो लोगों को पैसा मिलेगा उसमें। बहुत है वेबसाइट्स है इंटरनेट में, आपको फंसाते हैं और बाद में ब्लैकमेल करते हैं। ब्लैकमेल करते हैं, आप एक वेबसाइट देख रहे हैं, आपको फोन रिकॉर्ड करेगा आपका फोटो को, और नेक्स्ट टाइम से फोन आएगा, आपको ये वेबसाइट देखते वक्त हमने फोटो लिया है, तो आप अभी 1 लाख रुपए दीजिए, नहीं तो हमारे पास हम जहां बोल रहे वहां आइए, हाँ, नहीं तो आपको पेरेंट को बोलने वाला हूँ, नहीं तो आपका पूरा कॉलेज में हमने नेट में आपका व्हाट्सएप ग्रुप में डालते हैं ये फोटो, ये सब बोलते हैं। तो ये सब बहुत, ये जो हम बोलते हैं ना, इसका विष वृक्ष है बाहर, आपको मालूम नहीं है। आपको मालूम है बोलते हैं, मगर फंसते वक्त मालूम नहीं होता है। जो लोग फंसते हैं ना, उसको मालूम नहीं होता है, क्योंकि बड़े बड़े लोग फंसे हैं उसमें। डॉक्टर्स फंसे हैं, इंजीनियर फंसे हैं, मिलिट्री वाला फंसे हैं, हाँ, बड़े बड़े लोग पढ़े चुके, और जितना पॉलिटिशियंस है वो लोग भी फंसे हैं। क्योंकि हमारा जो है ना, काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य, ये सब हमारा अंदर रहता है, उसको पकड़ते हैं लोग, पकड़ के फंसाते हैं। तो हम सोचते हैं कि हम नहीं है, सरकार भी, हमें 3 आदेश मिले हैं। हमारा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से हमें एक पत्र मिला है, हमारा जो आयुर्वेद का काउंसिल है वो भी पत्र भेजा है, और दूसरा हमारा उत्तर प्रदेश सरकार से भी हमें पत्र मिला है कि आजकल की जो विद्या व्यवस्था में जो विद्यार्थी है, जो यंग जनरेशन है, ये जो बच्चे हैं, उसको डिविएशंस बहुत आ रहे हैं और लोगों को फंसा रहे हैं। एंटी सोशल एलिमेंट, देशद्रोही तत्व बना रहे हैं, लोगों को व्यसन पर कर रहे हैं, लोगों को अपना जो एक डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का जो है, उससे पलटा के उनको अपना पूरा लाइफ बर्बाद करने का एक स्थिति में लेके जाने का व्यवस्था बाहर है। इसीलिए अब बोल रहे हैं कि कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज जो है, अपना स्टूडेंट से अच्छा कांटेक्ट मेंटेन कर रहे हैं, मेंटर मेंटी सिस्टम से, क्लास कोऑर्डिनेटर से, स्टूडेंट वेलफेयर सिस्टम से करना है। और पेरेंट से पेरेंट टीचर मीटिंग रख के, जो मेंटर्स जो है, हर बार जब स्टूडेंट बोलता है मैं ऐसा जाना है घर, तब पेरेंट को मेंटर फोन करके पूछेगा आपका बच्चा घर आना चाहता है, नहीं तो वो दूसरा आपका रिलेटिव का घर जाना चाहता है, या वो बोल रहे हैं कि मैं ट्रिप जा रहा हूँ, प्राइवेट ट्रिप, आपको आपने परमिशन दिया क्या, ये पूछेंगे पेरेंट को। हम पेरेंट टीचर मीटिंग को इसीलिए बुलाया कि आपको जब हमारा मेंटर फोन करते हैं, उठाने का आपका जिम्मेदारी बनता है, क्योंकि हम जो बच्चे का है, हम आपसे बात करना चाहते हैं, आपका परमिशन है या नहीं सीखना चाहते हैं। क्योंकि आजकल का जमाने में कैसा है, व्यक्तित्व जो बोलते हैं ना आदमी का, उसके ऊपर हमने प्रश्न नहीं करना है। अभी जो आदमी है एक काम कर रहे हैं, हमने उनको नहीं बोल सकते कि तुम क्यों फोन देख रहे हो, अरे तुम ऐसा वस्त्र धारण क्यों किया है, तुम्हारे साथ जो फ्रेंड सर्किल है उसके साथ क्यों घूम रहे हो। हम नहीं बोल सकते कि तुमने जो लिख रहे हो या जो कर रहे हो ये अलग है, ये नहीं बोलना है। क्योंकि आज का जमाना का जो है ना, व्यक्ति स्वेच्छा बोलते हैं ना, ये एक है, मगर व्यक्ति स्वेच्छा का भी एक परिधि है। क्योंकि
एक पेरेंट है वो सोचता है कि हमारा बच्चा एक उन्नत स्थिति में जाए, अपना जो व्यक्तित्व है एक सच्चाई का व्यक्तित्व हो। हमारा सरकार भी सोचता है कि जो बच्चे हैं एक सच्चाई का व्यक्तित्व से बने, क्योंकि दूसरा जगह अलग बात है, मेरा वैद्य जो बनता है वो सच्चाई आदमी होना ही चाहिए, तो ईमानदारी होना चाहिए, वो एक ह्यूमैनिटी मानवत्व होना चाहिए उसमें। ये सब जो कैरेक्टर्स है हमारा आदमी में, डॉक्टर में, वैद्य में आना चाहिए। इसके बिना आदमी दूसरा तरफ जाता है तो हम उसको डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं। इसीलिए हमने बोल रहे हैं कि पेरेंट से हमने बात करते हैं कि देखिए ऐसा ऐसा चल रहा है ये लोक में, आप हम सब सतर्क रहना चाहिए, हम सब सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि अभी आपको मालूम नहीं होता है कि आपको फंसाते हैं और बोलते हैं कि एयरफोर्स में क्या क्या है बोलो, नहीं तो गन से आपका पेरेंट्स को या आपको मार देंगे। आप बोलेंगे जाके एयरफोर्स में जाते हैं, फोटो वीडियो लेके दे देते हैं, गोरखपुर का बम डालेगा। आपको मालूम नहीं होता कि क्या जाति द्रोह हम कर रहे हैं, हमें मालूम नहीं होता है क्योंकि आपके ऊपर गन है। तो ये सब चलता रहता है वर्ल्ड में। इसीलिए मेरा सरकार भी बोल रही कि हम बच्चों से और बच्चों का जो माता पिता है उन लोगों से हमने एक अच्छा संबंध रखे और उन लोगों से आपस में बातचीत करें, तो हम ये सब लोगों से हम मालूम होते हैं और जो चल रहा है सही चल रहा है बोल के हमने एक निर्धारण करके आगे चल सकते हैं। इसी के कारण ये हमने पेरेंट टीचर मीटिंग रखने वाले हैं। ये पहली बार हमने इधर रखे हैं मीटिंग। इसके पहले मेडिकल कॉलेज का एक मीटिंग हुआ है, तो 2 बार हुआ था। पहली बार भी एक बार बच्चे जब आए थे वो लोग आए थे, हमारे आयुर्वेद बच्चे भी, बच्चों का पेरेंट्स भी आए थे, उनका मीटिंग हुआ, इनका हुआ, जो नागार्जुन बैच आए थे। उसके बाद हमने 1 महीने पहले मेडिकल कॉलेज का पेरेंट्स को बुला के आए थे। मेडिकल कॉलेज का एटलीस्ट 70 पेरेंट्स आए थे 100 में, तो आयुर्वेद का लोग आ रहे नहीं है। हम बार बार बच्चों से पूछ रहे कि अपना पेरेंट का नंबर दे, नंबर भी नहीं दे रहे, गलती नंबर दे रहे। देखिए गलती नंबर देने से आपको ही नुकसान होता है। आप पेरेंट्स को भी हम बोलते हैं कि आपका नंबर दीजिए, क्योंकि बच्चों का जो समाचार होता है आपको आप तक पहुंचना चाहिए। क्या पहुंचना चाहिए? हम हर महीना अटेंडेंस कितना है हम भेजने वाले हैं, पेरेंट को मालूम होना चाहिए मेरे बच्चे का अटेंडेंस इतना है, क्यों कम है, ओके अभी हमने ही बुलाया उनको मैरिज के लिए तो ओके ये चलता है, उनको बुखार आया 4 दिन गया वो चलता है, तो अभी हमने एग्जाम के लिए जा सकता है नहीं जा सकता है मालूम होता है, हमने उनको नहीं बुलाते। अरे कुछ भी फंक्शन रहे तो पेरेंट्स बुलाते हैं, अभी ये कजिन का मैरिज है, उनका मैरिज है, अभी हमारे पास आ रहे बच्चे 20 दिन 30 दिन का मैरिज बोलते हैं कि मेहंदी से सब में रहना है। अरे देखिए आप एक डॉक्टर है, आप डॉक्टर बनने के बाद 20 दिन मैरिज में जाके रह सकते क्या? नहीं रह सकते हैं। आप सीखिए, आप जब डॉक्टर कोर्स कर रहे हैं डॉक्टर का बिहेवियर मालूम होना चाहिए। 5 मिनट जाके मैरिज में ऐसा दिख के बाहर आना पड़ता है, वो भी बहुत बहुत रेयरली मिलता है कि चाहे जाके बैठ के मिलने के आने का, क्योंकि वह जो वैद्य बनता है वैद्य का लक्षण जब स्टूडेंट है वो टाइम में भी सीखना चाहिए। कुछ नहीं हो जाएगा कि 15 दिन का मैरिज में आप नहीं रहे तो कुछ भी ये ब्रह्मांड ये ऐसा ब्रेक नहीं हो जाएगा, कुछ नहीं होगा आपका रिलेशन का भी, क्योंकि आप वैद्य पढ़ रहे हैं, वैद्य का शास्त्र पढ़ रहे हैं, आपको कुछ भी नहीं होगा। आप लोगों को समझ में आना चाहिए 20 दिन। इसका पहले एक एग्जाम हुआ है, एक लड़की गई है मैरिज के लिए, वो सब्जेक्ट में फेल हो गई है। क्यों? क्योंकि 15 दिन के पहले एग्जाम के पहले गई 15 दिन 15-20 दिन, अब एग्जाम में फेल हो गया, लाइफ में फर्स्ट टाइम फेल हो गई। मजा अलग होता है, लाइफ में फर्स्ट टाइम फेल हो गया, रोते रहते हैं। जो जाता है फिर आएगा नहीं ना में। तो इसीलिए मैंने बार बार बोल रहा हूं कि आप ऐसा छोटा छोटा चीजों में मत जाइए। आपका जो जीवन है वैद्य के लिए है तो आप इसमें रहना पड़ेगा, और पेरेंट्स को भी नहीं बुलाना चाहिए। पेरेंट्स भी बोलना आप, हमने इधर एक सेमिनार कंडक्ट किया, अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी है, महाराज जी आके उधर खड़े रह के भाषण किए हैं। ये पूरा हाल में 500 लोग है, ऊपर बाहर 1000 लोग आके बैठे हैं, कई से पूरा देश में से आके बैठे हैं। हमारे बच्चे नहीं हैं, ये बैच का बच्चे नहीं है उसमें।
यही बैच का बच्चे 30 लोग नहीं है, मैंने उसको लेटर दिया। महाराज जी के लिए पूरा देश तड़पता है, वो उनका फेस देके, वो खुद आके इधर रह के आयुर्वेद योग के बारे में बात कर रहे थे, आके बैठने के नहीं है। किसके लिए रखे हमने अंतरजातीय संगोष्ठी? विद्यार्थी के लिए है ना। आप लोग सुन सके कि पूरा विश्व में जो जो बड़े लोग हैं आके बात कर रहे हैं, आप सुन के उनसे सीखे। आपके लिए हम रखे तो आप भाग जाते हैं। हम डंडा पकड़ के बैठो 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 बोलना है, फिर भी 30 लोग गए हैं क्योंकि उनका टर्म एग्जाम हो गया। दिवाली है, दिवाली मुझे नहीं है क्या? दिवाली टीचर को नहीं है क्या? दिवाली महाराज जी को नहीं है क्या? खिचड़ी नहीं है क्या? सबको, सबको होता है। लाइफ में एक बार ऐसा रहता है आके सुनने का। अभी कितने साल खिचड़ी घर में मनाए, कितने साल दिवाली मनाए, हमें एक दिन मनाए तो नहीं, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। हम तो भेजे थे धन्वंतरी के दिवस के ऊपर, तो सब लोग पहुंचे, हम भी पहुंचे। हमारा घर 2000 किलोमीटर गए हमने इधर खत्म करने के बाद। आप तो इधर ही रहते हैं 200-300 किलोमीटर के नजदीक में, मगर आप लोग तो जाते हैं। आइए सर, इधर बैठिए, सामने बैठिए। तो हम चाहते हैं कि ये जो हम आपके लिए जो करते हैं उसमें आपका भागीदारी होना चाहिए, और पेरेंट्स भी उसी में भागीदारी में समझना चाहिए कि हमने सेमिनार कर रहे तो सेमिनार आपका बच्चों के लिए कर रहे। सेमिनार के लिए बहुत खर्च होते हैं, 10-20 लाख खर्च होता है। क्यों संस्था करना चाहिए 10-20 लाख रख के? आपके लिए हमने अलग लोगों को एयर चार्जेस दे के होटल में रख के सबको बुला के हमने रखवाते हैं, आप भाग जाते हैं। तो फिर किसके लिए सेमिनार कंडक्ट कर रहे हैं हमने? तो सेमिनार जब करते हैं तो आपको रहने का होता है। फर्स्ट आप देखिए, हमारा संस्था एक निर्णय लिया है कि धन्वंतरी दिवस को आयुर्वेद कॉलेज में जो पढ़ते हैं, आयुर्वेद में वैद्य करते हैं, जो पैसा आयुर्वेद में खाने वाले हैं या बाद में खाने वाले हैं, धन्वंतरी दिवस में धन्वंतरी भगवान को पूजा करे, होम करे अपना कॉलेज में। ये रंग है क्या विश्वविद्यालय जो निर्णय लिया है? फिर क्यों भाग जाते हैं? आप आयुर्वेद पढ़ रहे, धन्वंतरी होम करने के लिए एक कॉलेज में नहीं रह के जाने का क्या होता है? हम सोचना चाहिए ना, सोचना चाहिए ना। ये तो गलती निर्णय है ही नहीं है। धन्वंतरी तो भगवान है, आयुर्वेद तो वही दिया है, उसका पूजा करने के लिए उस दिन रहे तो क्या जाने वाला था? क्यों आप में 40 लोग नहीं है उस दिन? वागड़ बैच में थे, हाँ मेरे पास लिस्ट है फिर अभी भी। देखिए ये नहीं होना चाहिए, इसीलिए हमने इतना बड़ा मीटिंग क्यों निर्णय कर रहे हैं कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए ये हम जो कर रहे हैं ना, ये आपके लिए कर रहे हैं, आप उसमें भागीदारी के साथ काम करिए। हमने ये क्यों रखा पेरेंट मीटिंग? पेरेंट का मैं बोल रहा, मेंटर मेंटी से हर दिन अपना स्टूडेंट पेरेंट हमारा मेंटर से बात कर सकते हैं, मेंटर पेरेंट को बोलते हैं और उन लोगों से संबंध में रहेंगे। उसके बाद हमारा और एक टायर है, क्लास का एक कोऑर्डिनेटर रहेगा। वो कोऑर्डिनेटर पूरा क्लास का देखेगा, वो किस क्लास में अटेंडेंस कम है, मार्क्स कम है, उनको मालूम होता है। तो मेंटर से ऊपर क्लास कोऑर्डिनेटर है, उसके ऊपर हमारे पास है हमारा हर सब्जेक्ट का एक फैकल्टी रहता है और उसका एचओडी रहता है, उससे भी बात कर सकते हैं, आप लोग भी बात कर सकते हैं। तीसरा हमारा है एकेडमिक कोऑर्डिनेटर। तो ये जो कोर्सेस चल रहा है उसके ऊपर हमने एक एकेडमिक कमेटी बना के एकेडमिक कोऑर्डिनेटर रखे हैं, डॉक्टर देवी नायर है। कुछ भी विद्या के ऊपर कुछ हमारे पास हो रहा है, आप उन लोगों से बात कर सकते हैं कोई भी। तीसरा हमारा वाइस प्रिंसिपल को भी रखा हमने, उनसे भी बात कर सकते हैं। अब हमारे साथ हमने स्टूडेंट वेलफेयर कमेटी बोल के एक कमेटी बनाया, उसमें आप लोग भी सब भी है, उसमें सदस्य है। हमने हर बैच से एक बॉय एक गर्ल को रखे हैं कि स्टूडेंट वेलफेयर के लिए क्या करना है। आप मीटिंग में आके बैठ के जाने के लिए नहीं है, आप आके बोल सकते हैं कि हम वेलफेयर के लिए क्या कर सकते हैं, हमने कॉलेज में क्या कर सकते हैं, आपको आपका लेके हम करने के लिए रखे थे। उसके बिना हमने और स्टूडेंट काउंसिल बोल के रखे हैं, उसमें हमने स्टूडेंट का
हर बैच से कुछ लोगों को रख के फिर नीचे रखे हैं कि स्पोर्ट्स के लिए 1-2 लोगों का नाम, कल्चरल के लिए 2 लोगों का नाम, एकेडमिक के लिए 2 लोगों का नाम लिखे। और उस दिन भी मैंने इधर बोला था ये 2 लोग संयोजक है, उसमें मेंबर बन सकते हैं। आप जिसको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, कल्चरल में इंटरेस्ट है, वो ऑर्गेनाइज करने का आपका रहे तो आप आके उनके साथ मिलके करिए। अगली साल पत्र में आपका नाम संयोजक रहेगा। तो हमने क्लियरली बोल रहे ये सब। इसके बाद हमने अभी क्या किया, बुधवार और शनिवार को स्टूडेंट बेस्ड एक्टिविटी करने के लिए हमने 2-2 घंटा रखे हैं। बुधवार का शाम में 2 घंटा 3 से 5 बजे और शनिवार में 3 से 5 बजे हमने एक रखे हैं। 3 से 5 बजे में 2 दिन हमारा हॉस्पिटल में जो केसेस देखते हैं सब्जेक्ट वाइज, वो केस के बारे में इधर चर्चा होगा। उसके बाद हमने रखे कि संस्कृत हमारे आना चाहिए, हमने एक हफ्ता संस्कृत का होगा। और हमने 2 रखे हैं कि स्टूडेंट बेस्ड प्रोग्राम, आप ही खुद क्विज कंडक्ट कर सकते हैं, आप ही खुद कुछ प्रोग्राम बना के इधर एकेडमिक प्रोग्राम कंडक्ट कर सकते हैं। वेडनेसडे इज फॉर एकेडमिक, सैटरडे हमने बोला नॉन एकेडमिक। उस दिन एक्स्ट्रा करिकुलर को करिकुलर हमने बोले थे कि क्लब्स मीन्स लिटरेरी क्लब, पोएट्री क्लब, या क्या है ना गाने का या नृत्य का, ऐसा अलग अलग क्लब आप जिसको इंटरेस्ट है वो 3 to 5 सैटरडे आप उस एक्टिविटी को कर सकते हैं। हमने करिकुलम में लाके रखा है। यूजुअली तो ये 5 बजे के बाद होना चाहिए, हमने उसको आगे लाया है क्योंकि आप वही टाइम जो, क्योंकि लोगों को रहता है 5 बजे होने के बाद भाग जाना है, तो हम वही टाइम में अंदर रखे थे कि आप उसी में आप आके वो उसमें आप अच्छा लाइए। हम बोल रहे कि क्लब का मेंबर आप ही है, उसका सेक्रेटरी आप ही है, आपको चाहे तो हमने कोई हमारे फैकल्टी को एडवाइजर रखेंगे। आप पूरा साल में क्या क्या कार्यक्रम रखना है आप ही लोग बोल सकते हैं और इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो ये बहुत कुछ यूनिवर्सिटी में है, हम ये यूनिवर्सिटी में भी लाने के लिए हमने रखे हैं। हमने फील्ड ट्रिप कंडक्ट करते हैं कि आपका देखने के लिए अलग अलग देश में जाके कुछ संस्था को देखना है, कुछ ये देख के हमने सीख सकते हैं कि ये हमारा आयुर्वेद अलग अलग जगह कैसा है। वो टाइम में मेरे पास कोई भी पत्र लाके आया, मैं नहीं जाऊंगा, मेरा पेरेंट नहीं भेजेंगे, मुझे ये तकलीफ है वो तकलीफ है, हम तो मानने वाले नहीं है। क्योंकि ये NCSM हमारा जो काउंसिल है बोली है कि आपने उधर जाना ही है, आपको एक दिन नहीं गए तो 8 क्लासेस का अटेंडेंस लॉस होगा। हम तो 4-5 दिन का ट्रिप रखते हैं, 40 क्लास जाएगा, आपका पूरा अटेंडेंस बिगड़ जाएगा। तो आप उसके लिए रेडी रहना चाहिए फील्ड ट्रिप के लिए। और हमने कुछ ये भी रखे हैं विशाखा, बोले तो किसी लड़कियों को कुछ दिक्कत हो रहा है तो देखने के लिए हमारा यूनिवर्सिटी कमेटी है, हमारा कॉलेज में भी एक कमेटी है। किसी लड़की को कुछ दिक्कत हो रहा है तो कोई कुछ कर रहे, आप आके उनसे बात करिए। हमने स्टर्न एक्शन लेने वाले हैं। स्टर्न एक्शन बोले तो कॉलेज से बहिष्कृत हो जाएगा आदमी। हाँ, इट इज महाराज जी का वचन है, जो भी लेडीज के ऊपर कुछ करेगा वो आदमी नहीं रहेगा। हाँ हाँ। और हमारा एंटी रैगिंग कमेटी भी है। आप लोगों को भी, आप अब जूनियर से सीनियर बने हैं, आप जूनियर से सीनियर बने हैं, पहले तो आपको रैगिंग करते बोल के हम आपको बचाव करना था, अब आप सीनियर बने हैं तो अभी रैगिंग करने वाला आप है। एंटी रैगिंग एक्ट पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है आप किसी के पीछे कुछ भी किया, कॉलेज से बहिष्कृत, 6 महीने से 3 साल तक जेल, ये सब है। सबको मालूम होना चाहिए कि मैं बच्चे को मेरा नोट्स उनको दे दूंगा। आपको जोक में दिया होगा, वो बच्चे लाके यूनिवर्सिटी में दे दिया, ये मेरा सीनियर नोट्स लिखने के दिया, रैगिंग एक्ट में लिखा है। इफ यू हैव गिवन एनी नोट्स टू एनीबॉडी जूनियर यू आर पनिशेबल। आपको इतने छोटा चीज है, मैं एक ही पेज लिखने के बोला, कुछ भी नहीं होता है। एक पेज लिखवाए तो भी आपको अधिकार नहीं है वो बच्चे के ऊपर, आपके ऊपर दूसरों को कैसा अधिकार नहीं है। आप जैसा आपका पेरेंट्स को प्रियतम बच्चे हैं, वो भी अपना पेरेंट को प्रियतम बच्चा है। उसको ये वर्ल्ड में
जैसा हम आदमी हैं वो भी ये वर्ल्ड में भगवान उसको भी एक प्लेस दिया है, उसके ऊपर किसी को अधिकार चलाने का नहीं होता है। तो किसी के ऊपर हम किया तो हमारे ऊपर ला एक्शन लेती है। अब आप जागरूक रहिए, क्योंकि पहले आपको बचाव रखते रहा, अब सीनियर बनने के बाद एकदम से आपको लगेगा कि मैं कर सकता हूँ। अभी जो बच्चा आता है मत करिए कभी भी, क्योंकि वेरी डेंजरस एक्ट है। आप चाहे तो हमने एंटी रैगिंग एक्ट सबको शेयर करते, पढ़िए, उसमें पद पद पढ़ के रखिए, ऐसा नहीं करना। विशाखा एक्ट पढ़िए बच्चे, उसमें जो बोले हैं उसमें कभी भी गर्ल्स के साथ नहीं करिए, क्योंकि ऐसा किया आप डायरेक्ट काले से बाहर जाके 2-3 साल जेल में रहने वाले। क्योंकि पढ़ना चाहिए और मालूम होना चाहिए। अभी ला को मालूम नहीं हो तो फंसेंगे हम, ये सब चीज मालूम होना चाहिए। क्योंकि हमने इतना घर से क्यों बोलना पड़ रहा है कि बच्चों को मालूम नहीं हो रहा है, वो सोच रहे कि कुछ नहीं होता है। क्योंकि ये कंप्लेंट आया है एक गर्ल से या एक जूनियर से, आपका लाइफ गया, यू विल नॉट बिकम डॉक्टर, आप जेल में रहने वाले हैं, बहुत दिक्कत हो जाने वाले हैं। हम आप लोगों को समझाते रहते हैं, आपको समझ में नहीं आएगा, लास्ट मिनट में सोचेंगे कि कुछ नहीं होगा। और किसी को भी किसी ने कुछ मारना नहीं चाहिए, अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, जातिवाचक शब्द नहीं बोलना चाहिए, ये सब भी लॉ के अंडर है। उसके अंडर भी आप समझिए कि क्योंकि कुछ कुछ संगठन हो रहे हैं, छोटा छोटा संगठन हुए हैं, उसके ऊपर अभी यूनिवर्सिटी में हाई लेवल कमेटी बैठ के हमने सबको समाधान करके जो बच्चे है उसको हमने समाधान किया। नहीं तो वो जो मारा है या कुछ अपशब्द बोला था उसको बाहर निकालने वाले थे, जेल में रखने वाले थे। देखिए हर बार नहीं होता है, क्योंकि आजकल कैसा है ना, बाहर सोसाइटी में भी लोग है, किसी के ऊपर आप बोला शब्द वो पूरा कैंपेनिंग करेंगे, रोड पे टीवी पे आ जाएगा, बचाने का हमारे पास ये भी नहीं रहेगा। क्योंकि अब बच्चे हैं बोल के हम बोलते हैं, मगर बाहर तो सोसाइटी मीडिया ये सब है, वो पकड़ के बैठेगा। तो इसीलिए हमने बोल रहे कि ये सब चीजों को हमने समझना, और ये सब हार्ड है क्या, कुछ नहीं है। आप अपना उसमें डिसिप्लिन एरिया में रहिए। आप कॉलेज आए हैं, क्लास में अटेंड किए, हॉस्पिटल अटेंड किया, दूसरों से दुर्भाषा नहीं किया, दूसरों को मारा नहीं है, दूसरों को आप जो रैगिंग या विशाखा एक्ट ऐसा वाला काम कुछ भी नहीं किया। आप पढ़ रहे हैं, आपके ऊपर कुछ भी नहीं होगा। ये तो साधारण लाइफ है, साधारण जीवन है। उससे भिन्न कब होते हैं ना, हमारा फोन देता है हमें धैर्य, हमारा बाजू वाला फ्रेंड बोलता है, हाँ, उनको तो कुछ दिक्कत नहीं है उसका लाइफ के ऊपर, वो बोलेगा करो करो, कुछ नहीं होता है। ए जाके बोलो आई लव यू बोलो, वो लड़की नए लव ब्रेकअप बोले तो उसको जाके उससे मारो, या उनसे हम देखेंगे सब लोग जाके, ये सब करने वाले हैं लोग। तो आप किसी फ्रेंड सर्किल में ऐसा बातों को मत सुनिए, आपका लाइफ बर्बाद होने वाला है ऐसा चीजों से। जो फ्रेंड सर्किल में जो फ्रेंड्स है, बैड फ्रेंड्स है, पीर ग्रुप इज द डेंजरस ग्रुप ऑफ योर एज, दे विल स्पॉइल योर लाइफ। आप उससे बाहर आना चाहिए, इसीलिए हमने ये मीटिंग रखे हैं। क्योंकि अभी देखिए कल से आपका क्लास होगा, हमने फिर शुरू करेंगे कि हाँ तो रस क्या है, ये क्या है, प्लांट क्या है, डिसीज क्या है। आपसे ऐसा फ्रीली बात करने का नहीं मिलेगा हमसे, इसीलिए हमने रखे हैं कि आप लोगों को समझे कि ये सब जो है आप हमने अत्यंत उसमें ऊपर हमारा माइंड रख के काम करने वाला चीज है। मैंने ये सब होने के बाद अभी हमने कुछ अच्छा काम किए थे। मैं आज नहीं है, नितेश दुबे है क्या, नहीं आए हैं, वो हमारा भारत सरकार जो है उन्होंने CCRS बोल के एक शोध संस्था है, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो BAMS बच्चों के लिए रिसर्च प्रोजेक्ट्स का एक बनाया है। तो उसमें हमारा ये साल में 10 अप्लाई करे तो हमें 5 मिला है, 5 ही ज्यादा है। हर संस्था को भारत देश में जो बड़े अच्छा संस्था है 5 से किसी को ज्यादा नहीं दिया, हमें 5 मिला। उत्तर प्रदेश में एक ही संस्था है ऐसा 5 मिलने वाला। हमारा BAMS बच्चे उसमें 5 लोग लिए हैं, और आपका बैच में नितेश दुबे एक है जो वो 50,000 का फेलोशिप का पाए हैं। तो हम इधर से उसको बहुत बहुत बधाई देते हैं संस्था के सबसे। और दूसरा
आजकल जमाना है इनोवेशन, हैकाथॉन, आप सुनते रहते हैं, संस्था स्थापन करना, प्रोडक्ट लाना, बिलियनियर बनना, ये आजकल की जमाना का बच्चों का स्वप्न है ना। तो हम भी इसके लिए प्रतिबद्ध है। हमारे पास एक RIEDC रिसर्च इनोवेशन एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट सेल बोल के बनाए हैं। आपका बैच से भी एक बच्ची को रखे हैं और कुछ लोग चाहे तो हमने रखेंगे। हर महीने हमारा मीटिंग होता है। इसी के तरफ भारत सरकार ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के तरफ से एक कंपटीशन रखा है कि 100 लोगों को हमने 1 लाख का जो फेलोशिप देने वाले हैं कि वो हैकाथॉन, नव प्रवर्तन हैकाथॉन बोल के एक रखा है जनवरी में। वो टाइम में उन्होंने बोला हर कॉलेज 3 ही प्रपोजल भेज सकते हैं। हमारे पास बहुत अच्छे हैं, आप लोग 40 लोग आए, अपना प्रपोजल हमने स्क्रीनिंग किया, 40 में हमारा 3 भेजना बोला, 3 भेजा। उसमें हमारा प्रगति यादव, उठो एक बार, हाँ? तो इनका सिलेक्शन हो गया। तो हम इसको बहुत बधाई देते हैं, क्योंकि इतना इजी नहीं है कि हैकाथॉन में विन होना। हैकाथॉन में जीतना और पूरा भारत में 100 में 1 होना, दैट इज द ग्रेटेस्ट थिंग। तो ऐसा सिंपली लगता है आपको, मगर इट इज नॉट। वो फर्स्ट ईयर से पढ़ी, उसके पीछे है, फर्स्ट ईयर रखी है, उसमें नहीं आई, उन्होंने सोचा मुझे आना ही चाहिए, तो इस बार आई है। और उनको ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ने प्री इंक्यूबेशन ट्रेनिंग दिया है, 3 दिन IIM लखनऊ के साथ उन्होंने ट्रेनिंग दिया, और ट्रेनिंग होगा और उनका एक संस्था बनेगी और उससे उन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स एंड ऐप निकालने वाली है। हम उसको विशेष करते हैं कि वो सपना साकार हो। और उसके बाद हमने एक प्रोग्राम, भारत सरकार ने बोला है कि देश का प्रकृति परीक्षण करना है। 1 करोड़, 1 करोड़ का होना चाहिए। तब हमें भी आया था, हमारा एकेडमिक शेड्यूल चला रहे थे, उन्होंने बोला नहीं नहीं आपका कॉलेज से नहीं हो रहा। तो हमने आप सब लोगों को बुलाया, आप सब लोग बहुत आगे जाके, मैंने बोला था जो लोग 100 करेंगे हम उसको सर्टिफिकेट देंगे और आपको संस्कृत एग्जाम में मार्क्स देंगे। बहुत लोग किए हैं, वी आर वेरी थैंकफुल टू यू, आपको अप्रिशिएट करते हैं। और इसमें जब 100 हुआ है, कुछ लोग बहुत आगे गए थे, तो जो उसमें हमारा आज है मोहित, उठो, ये 600 है ना, कितना किया? 547। और एक त्रिभुवन आपका बैच का ही है, और एक है ना गर्ल्स में 400। श्वेता का है नहीं है? हाँ, श्वेता किया है। तो यही बैच वाला 600, 500, 400 किया है। एंड आपने पूरा कॉलेज में एक माहौल क्रिएट किया कि पहले हमने सोच रहे थे कि एक 100 होगा, नहीं होगा एक स्टूडेंट का, तो आपने एकदम बदला दिया कि 500, 600। तो पूरा कॉलेज में आपने एक कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर लाया। इसीलिए मैंने सब बैच को बधाई देता हूं, क्योंकि यू चेंज्ड द एटमॉस्फेयर, अदरवाइज वी वुड नॉट हैव रीच्ड दैट 14,000, 15,000। उसके बाद NCSM ने फिर पूछा हमें कि हमें 500 लोगों का वीडियो बना के देना। आपका बैच ही करके दिया है ना। तो आपका बैच 1 दिन में करके दिया। हम NCSM बोर्ड चेयरमैन और वो लोग हमें फोन करके बोले थे 1 दिन में होना, आप 1 दिन में करके दिया। वी आर वेरी अप्रिशिएटिंग यू फॉर दिस टास्क ऑफ कंप्लीटिंग 500। और हमने कुछ करना चाहते हैं कि मैगजीन निकालना चाहते हैं, आप लोग इच्छुक है तो आके उसको आगे चलाएंगे। और मैं बोलता हूँ क्लास में और हॉस्पिटल में अच्छा सीखे, ग्राउंड में खेले और अच्छा कल्चरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करे। और कुछ आपका बैच में भी कुछ लोग लिखने वाले हैं तो पोएट्री लिखिए। आपका बैच ही है ना, उस दिन अच्छा पोएट्री बोल रहे थे। और हाँ, यही बैच है। 50% लोगों को कविता लिखना आता है। लास्ट टाइम मैंने जब आपका फ्रेशर्स पार्टी हुआ था, नियरली 40 स्टूडेंट्स हैव रेड देयर ओन पोएट्री। तो ऐसा लोग, हम सोचते हैं कि मंथली आपका जो स्टूडेंट इवेंट का सैटरडे है, 1 वीक जो है लिटरेरी इवेंट हर महीने होना, उसमें कंपटीशन होना चाहिए। तो आप लोग आगे लेके उसको आगे ले जाइए। और हम
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा साइंस और सबको लेके आगे लेना है। आप लोग ही उसके आगे जाएंगे। और इसके साथ बहुत टाइम लिया मैंने, और जो पेरेंट्स आए हैं हम उसको बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप आए। हम इसके बाद थोड़ा आप लोगों से बात करेंगे, क्योंकि हम सोचे कि सब लोगों से बात करें, पहले बच्चों से सबसे, उसके बाद आपसे बात करेंगे। और हम सोचे ज़्यादा लोग आएंगे 21, थोड़ा रेल नहीं होने से कुछ लोग नहीं आ पाए। ये मीटिंग्स यही नहीं होता है कि हम हर बार करते रहते हैं कि हर टर्म एग्जाम के बाद ये सब रखते हैं, जिसको हो सकता है आ जाइए, नहीं तो आज भी हमने जूम का भेजने वाले हैं, तो जूम का भेजेंगे, एटलीस्ट उसमें जुड़ के आपका जो है बात कर सकते हैं। तो आई एम थैंकफुल टू ऑल वी हैव मेड दिस सेशन। हमारा एकेडमिक कोऑर्डिनेटर है, हमारा सेकंड प्रोफेशन कोऑर्डिनेटर है, और हमारा इवेंट कोऑर्डिनेटर संजय मैडम है। ये सब लोग बहुत काम किया, हमारे बच्चे भी बहुत काम किया। आई एम थैंकफुल टू ऑल। थैंक यू। धन्यवाद सर। अब हम सभी से अनुरोध करेंगे कि वंदे मातरम के लिए अपने स्थान पे खड़े हो जाए। वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरम् सुब्रजोत्सना पुलकितयामिनी पुल्यकुसुमिता द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम् कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराले कोटि कोटि भुज धृत खर कर वाले अबला के नुमा इतु बले बहुबल तरणिम नमामि करणिम रिपुदल वर्णिम मातरम वन्दे मातरम वन्दे मातरम। भारत माता की भारत माता की